अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बीवी को हुआ देसी नशा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है ईटिंग बैंगलोर्स आइकॉनिक MTR मसाला डोसा इन लंदन। सो स्टार्ट करते हैं। When medu vada fries, in the pot, my heart. Oh, I love medu vada. Good afternoon, guys. Welcome back to another vlog, another day. Like we always say. काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हमारे साउथ इंडिया के, स्पेशली कर्नाटका से जो हैं, वो लोग हमें बोल रहे थे कि भैया MTR रेस्टोरेंट है जो बहुत फेमस है बेंगलुरु में, वो लंदन में भी खुल गया है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके वहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आ गए हैं हम हैरो में एट MTR रेस्टोरेंट टू ट्राई देयर डिलिशियस फूड। I've heard really good things about it. When it comes to masala dosa, because this is very important part because I need my potatoes. So when it comes to potatoes, when it comes to masala dosa, I'm always excited. And the moment you told me at home like you wanna have some masala dosa, I was like, yeah, you don't have to ask me. So I'm so happy to be here. Let's go inside. Let's try their food, and I hope they will give us like lots of potato inside. But whatever, I'm just already dreaming about it. Yeah. But anyway, guys, before we start and take you inside, if you're new to the channel, don't forget to like, share, and subscribe. चलो भाई चलो। देख रहे हो भाई क्या भीड़ है अंदर, देख रहे हो भाई, मैंने आज तक कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। फॉर द नॉर्थ इंडियन पीपल, क्योंकि हमारे दिल्ली में इतने लोगों को तो पता नहीं है MTR के बारे में। आई थिंक दिस इज मोर अ बेंगलुरु और अ कर्नाटक थिंग। आई थिंक दिल्ली में भी आप लोगों ने MTR के वो रेडी टू गो फूड मील्स देखी होंगी। सो दैट इज द सेम काइंड ऑफ ब्रांड, इट्स द सेम कंपनी। आई थिंक दो दे हैव स्प्लिट इनटू टू नाउ, but the restaurants are still managed by family. Started in 1924. I think three brothers. They were three brothers that created this brand. One of the brothers later on he traveled to Europe to check other restaurants and see what the stuff is in terms of hygiene, quality, and he brought back all that experience and kind of used it in his restaurants. I think it's one of the very few restaurants at that time that was sterilizing their utensils and stuff. And I've heard the sambar is to die for. तो मुंह में पानी आ रहा है। ये फूड रिव्यू ना मेरे से होते नहीं है ज़्यादा। आई एम मोर इनटू जस्ट ईटिंग इट। रिव्यू क्या देना भाई? Mouth is watering already. Just thinking about it. खुशबू आ रही है ना, वो जो सेसमी, वो क्या बोलते हैं, वो मस्टर्ड सीड स्मेल। This potato. जो पहली धार का पड़ता है ना आलू पे। Chutneys. I love this chutneys. चलो भाई वेट करते हैं। Class again, I'm so surprised क्योंकि usually दिन दहाड़े तो इतना क्राउड नहीं होता है लंदन में, तो this is a very pleasant surprise. Basically ये जगह है जहाँ पे रवा इडली जहाँ भी आप देखोगे वो MTR ने ही इन्वेंट की है। Fascinating. मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता था भाई इस बारे में। I'm just thinking what we're going to have because I thought we'll be having like sharing things, and now you're saying that they are small portions. So शेयर वेयर नहीं करना मैंने। I don't want to sharing share. doesn't work. ना। ठीक है। एक All चीज, right. हर चीज एक ले रहे हैं। Okay, masala dosa for me. The rest you can organize your way. चलो ठीक है। Ghee inside the dosa and coriander chutney we put inside. And benne masala, so benne means butter. So that's why we put a butter inside the dosa, and we put a mint chutney inside the dosa. Okay. And fluffy inside and crispy outside. So let's do one of this and one of this then. Yeah, that's fine. When medu vada fries, in the pot, my heart. Oh, I love medu vada. किचन दिखा रहे थे अपना, इतना क्लीन एंड as again when they say hygiene पे ध्यान देना, everything like proper clean, proper organized. खाना भी आ गया है। ये Oh, it smells very nice. You like this?
smells like a proper meal. अरे पी लेना मेरी माँ. Oh, it's lovely. Yeah? It tastes like. This is authentic filter coffee. It's actually reminding me about my grandparents. Really? Because they used to drink similar coffee. Yeah? Yeah, I will give it to you in Poland. We have one coffee that tastes very similar. Rava idli, Yeah. bisivela rice, masala dosa, Yeah. benne masala, Okay. and pineapple bisivela. That looks amazing. That looks tempting. Thank you. Fresh pineapple inside. All right. Okay. Thank you. Taste it now. Thank you. So let's start with रवा इडली जो यहाँ का इन्वेंशन है. So soft. Jerila What's लग रहा है. inside? Nuts? This is probably nuts and some herbs, and I think this is Coriander. yeah. मुझे पता था you will like it. It's nice, isn't it? It's so nice. That tastes a little bit like couscous. Yeah. भाई मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ. Oh. It's light and it's got good flavors, like subtle flavors to it. Very good, this one. So this is the. This is my favorite. भाई कैसे टूट रहा है भाई. This is मेदू वड़ा. Take your time. You have tried this before, na? Yeah. Now try it. Because usually when it's when we eat it in Delhi, it's kept for a very long time. भाई दिल्ली में क्या होता है जब मेदू बड़ा है ना, यूजुअली पहले से प्री प्रिपेयर करते हैं सुबह सुबह और फिर बाद में बेचते हैं, तो इतना हार्ड हो जाता है. दो उसका भी टेस्ट ठीक ठाक आता है, बट गर्मा गर्म तेल में उबला हुआ और निकला बाहर, और दैट टेस्ट इज completely different. So Sylvia ji is trying now bisi bele bhat. ये I have also not had it ever. Yeah. Wow, you love it. It's very soft. Is it similar to khichdi? Little bit. Okay. Little bit. It's little bit. Okay. भाई खिचड़ी जैसी इसकी looks है, but I think भैया also said that it's completely different. So let me see. It's got that South Indian, that खट्टानस, tanginess है इसके अंदर वो. Oh, it's nice. Yeah, it's very similar to खिचड़ी, but जैसे हम लोग खिचड़ी खाते हैं दिल्ली में वैसा ही टेस्ट है, बट लेकिन वो सांबर का जो फ्लेवर है वो आ रहा है इसमें. देयर सांबर इज टू डाई फॉर. दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट सांबर आई हैव एवर टेस्टेड. खटास है एक सांबर में और स्पाइसीनेस है, एंड द कंसिस्टेंसी इट्स वेरी क्रीमी. यूजुअली सांबर बहुत पतले होते हैं जो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते. ये तो दिस इज आर्ट सिल्वी, ये तो आर्ट है यार. ग्लेज देखो क्या है यार, क्या बना है भाई. ओफो भाई साहब क्या डसा है यार. मेरे मुंह में पानी आ रहा है और आलू ही गिर गया मेरा. It was a very messy approach. It was very nice. All right, very nice. That is different because this one has butter inside. This is class apart. Let me try it then. You can't even compare it. Yeah. Look at the potato. Is it good? Oh my god, it's lovely. This one's with ghee. I think this one is with ghee. Oh, हाँ. Oh, wow. भाइयों बहनों, मुझे पैसे नहीं दिए गए यहाँ से बोलने के लिए ऐसा. We just found it and we are coming. जो लोग लंदन आ रहे हैं साउथ इंडियन खाने, वेम्बली मत जाना. ये रेस्टोरेंट पे जाओ पागल हो जाओगे भाई.
स्पेशली पीपल हु हैव एक्चुअली यू नो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हु आर कमिंग और जिन्होंने साउथ इंडिया का ज़्यादा खाना नहीं खाया है। घी है, प्योर घी। दिस लुक्स लाइक अ हलवा, लाइक सूजी का हलवा वी हैव, यू नो द सेमोलिना, इट लुक्स द सेम। आई मीन वही है, आई थिंक इट्स दैट ओनली। But with pineapple, that's such an interesting combo. चल खा ले। It's not too sweet. Sometimes, you know, the Indian sweets are very Crazy sweet. killer, yeah. Oh wow. It's exactly like how we have suji ka halwa. But it's obviously केसर डला हुआ है, फ्रूट्स डले हुए और पाइनएप्पल का दिस वन सटल फ्लेवर लाइक आफ्टर टेस्ट पाइनएप्पल का आ रहा है। इट्स वेरी नाइस। अगेन समथिंग वेरी यूनिक। सूजी का हलवा वी हैव ईटन इन दिल्ली आल्सो वी ईट, बट ऐसा कॉम्बिनेशन पाइनएप्पल के साथ, ओह मज़ा आ गया भाई। सिल्विया को नशा हो गया लग रहा है। Now, So full. yes, now I need to lie down. Now I actually understand Indian people why they always sleep. चले, shall we go? Thank you so much, guys. Amazing food, yeah. Thank you. Silk. Beautiful. Okay. Thank you. What's your name? Ruchi. Amazing. No, Ramita Rai. Ramita Rai. Thank you, guys. काफी जोकीले शेफ है भाई इन लोगों के। मस्त जगह यार, बहुत अमेजिंग जगह। Thank you. नशा ये सांबर का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, सांबर में यार डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो। भाई मैं तो कोमा में चला गया हूँ, माँ कसम से। ऐसा खाना तो मैंने भाई अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया भैया। मतलब दिल्ली में भी भाई इतने सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन ऐसा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट तो मतलब कमाल है भाई। अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई इतना, क्योंकि बैंगलोर के काफ़ी आई थिंक सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि भाई ये ट्राई ज़रूर करना। अब समझ में आता है भाई कि क्या जहरीला खाना है भाई। I would food coma, वाह कसम। Now I'm a little bit like in this dreamy state that I want to lie down Yeah. and let the food settle in my tummy. But it was yummy, guys. It was yummy. तो चलो भाई, आई होप कि आपको आज का खाने का व्लॉग अच्छा लगा। मुझे तो लग रहा है हम लोग फूड व्लॉगर बन गए। आई थिंक सिल्विया जहाँ भी जाते हैं खाना, भाई देखो खाना इज़ द फंडामेंटल थिंग। हर इंसान कहीं भी जाए, ट्रैवल भी करोगे तो खाना तो खाओगे ही ना। तो हम थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, बट एज अगेन होप करते हैं कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और बस मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। हैं Bus. समथिंग यू वांट टू ऐड? बस हो गया, सिल्विया का हो गया। मुझे लगता है सिल्विया की भी आज आत्मा ना तृप्त हो गई है। यू ऑल्सो फील लाइक यू नो योर पर्पस इन लाइफ इज डन ऑलरेडी। जी जनाब, लंदन में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, यही तस्वुर ही अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यूरोप में, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जब इंसान अपने देश से दूर होता है ना, वो तरसता है, वो तड़पता है अपने देश के खानों को, अपने देश के, अपने घर के, अपने आसपास के, अपने मोहल्ले के, अपने शहर के खानों को। क्योंकि दूसरे शहरों में वो चीज़ नहीं मिलती। अच्छा, क्या होता है पता है, यहाँ से जो लोग अक्सर जाते हैं ना बिज़नेस के चक्कर में, रोज़गार के चक्कर में, तो अक्सर मैंने ये भी देखा है कि वो बाकायदा अपना एक कुक लेके जाते हैं। अच्छा। वहीं पर जो अच्छी मतलब बड़े लेवल पे जा रहे होते हैं, पूरी बिजनेस वहाँ करते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो अपना कुक लेके जाते हैं ताकि हमें वो खाने बना के दे, क्योंकि आसपास वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई छोटे लेवल पे जाते हैं मजदूरी करने, यानी कि एक तरह से कंस्ट्रक्शन के काम में, दूसरे कामों में वो लोग बनाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो मिल के बनाते हैं। हांडी बोलते हैं उसको, हांडी बनाना, सामान ख़रीदते हैं। अच्छा, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जो भी लोग मजदूरी करने जाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि उनमें से एक आध को तो आता ही है खाना बनाना। कई लोग ऐसे मर्द होते हैं
कि हर मर्द को नहीं आता खाना बनाना, मर्द की नेचर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जिनको आता है। तो फिर अच्छा, वो गाइड भी किया जा सकता है, फैमिली फिर को वीडियो कॉल कर लिया, फैमिली को कॉल कर नहीं, लिया, वाइफ से पूछ लिया। अब तो वो वीडियोस पड़ी हुई भी हैं हर चीज़ की। वीडियोस पड़ी नहीं है, और नहीं अगर आपको घर का ही आता है, जैसे सपोज आपको घर की बिरयानी खानी है, जैसे घर में बनती है, तो आप आराम से, अब तो बहुत आसानी हो चुकी है, तो आप आराम से वीडियो कॉल पे गाइडलाइन ले सकते हो तो अपनी वाइफ से, अपनी मदर तो ये से। साउथ इंडियन जो लोग हैं, अगर वो अच्छा बैंगलोर में है MTR, हाँ, और ये उसकी ब्रांच है, बिल्कुल। और इनको लोग बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट्स कर रहे थे बार बार, मतलब एक तरीके से इनको बहुत फोर्स कर रहे थे कि आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे, आप वहाँ जाएं। अच्छा, आखिर में कह भी रहे कि हमारा चैनल तो फूड व्लॉग बन चुका है, हमारा व्लॉग चैनल, कि यार ज़्यादातर हम जब भी जाते हैं खाना खा रहे होते हैं, फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि इंसान के लिए फंडामेंटल थिंग होती है खाना। अब कहीं पे भी जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन खाना तो लाजमी खाएगा ना, बिना खाए तो नहीं रह सकता। अच्छा, डोसा एक ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सबसे पहले मौका मिले कि यार इंडिया की कौन सी चीज़ आप खाना चाहते हो, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कंपलसरी हो गया है। अच्छा, मैं जब से वीडियो देखती हूँ ना, मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है यार, हम बहुत अनलक्की हैं यार, कि मतलब डोसा तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, मतलब हमारे यहाँ हर क्यों एक के बाद नहीं? दूसरी वीडियो, हर एक के बाद दूसरी जगह, हर एक के बाद दूसरा रेस्टोरेंट आप देख लो, हर जगह आपको डोसा मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ हम बहुत ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने आज तक टेस्ट नहीं किया, हमने आज तक नहीं खाया, प्रैक्टिकल नहीं किया, बनाया नहीं, या कभी बनाया भी नहीं। सही कह रहे हैं आप, रेसिपीज पढ़ी हैं, एक के बाद दूसरी वीडियो आपको दिख जाती है, आप आराम से गाइडलाइन लेकर बना सकते हो, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हो सका। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये ऐसा क्यों है, यानी कि एक दो देश हैं, उनके दरमियान में इतना फासला भी नहीं है, लेकिन एक अजीबोगरीब सी कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की, कि बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ वहाँ पे इतनी फेमस और यहाँ पर पता ही नहीं। चंद लोगों को पता जो सोशल मीडिया पे है या यूँ। अच्छा, इसके अलावा वो चीज़ बड़ा पाव ठीक है ना, फिर भी चले हम बर्गर वाली शक्ल में खा ही लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी खा लेते हैं, पानी पूरी भी खा लेते हैं, और एक और चीज़ है, क्या है? जो मतलब है कि उसमें सेहूं डालते हैं, और बेलपूरी वो भी कराची में चले हम खा ही लेते हैं, वो भी मिल जाती है, उसको भी अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन डोसा क्यों नहीं कॉमन? डोसा यहाँ पर बिल्कुल ही, क्या वजह है? इक्का दुक्का तो जगहों पे मैंने सुना है, क्या डोसा पे भी यहाँ पाबंदी तो नहीं? लेकिन कॉमनली नहीं है, जैसे पॉपकॉर्न मिल रहे होते हैं आपको, बर्गर्स कहीं पे भी आपको मिल रहे होते हैं, तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि डोसा भी मिले आपको, कदम कदम पे अवेलेबिलिटी हो, कि आपका जब दिल करे आप लो और खा लो। बाकी इनका व्लॉग बड़ा रियल होता है, बड़ा मतलब है कि विदाउट एनी कट डिटेल से बताते हैं, जो चीज़ फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो बताते हैं। आज तो इनकी बंदी भी काफ़ी बातें कर रही थी, आज वो भी मतलब फुर हो गई हैं, और किचन के अंदर भी चले गए, वहाँ की सफाई वगैरह भी दिखाई। तो मतलब कोशिश करते हैं कि ये डिटेल से एक चीज़ की वीडियो बनाते हैं, और एक एक चीज़ जो इन्होंने चखी, जो इन्होंने खाई, बाकायदा फील करके दिखाया, बताया हमें पता चल रहा है कि फेस देखकर हमें पता चलता था कितनी मतलब कितना लुत्फ आ रहा है और कितनी टेस्टी है ये अपने आप में। अच्छा, फिर देख के हमें पता चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाए हम किस तरह डोसा को लेकर, तो हाँ जो भी मुझे कहे मैं हूँ, ठीक है ना, समझ रहे डोसा को लेकर अगर आप मुझे कुछ कह रहे हैं तो मैं हूँ, समझ रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि मुझे रेस्टोरेंट की तरफ से कोई मतलब स्पॉन्सर्ड नहीं किया गया, या मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बोला गया हो, मुझे पैसे मिले हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जो भी लोग कर्नाटका फूड खाना चाहते हैं, जो भी साउथ इंडियन फूड को खाना चाहते हैं, तो वो लाजमी MTR रेस्टोरेंट। बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।